Whatever we were learning in last class, everything, each and everything was related to animal kingdom, right? And moreover, each and everything was related to what? Non-chordata, right? We had moved to the topic of chordata a little bit, right? Little bit we had moved to that particular topic, right? In chordata, little classification we had seen, है ना? Protochordata we had seen. In that we had seen cephalochordata and urochordata, right? Today we will be discussing about vertebrata, right? In vertebrata, param. In vertebrata, we will learn about agnatha and gnathostomata, right? Agnatha will not have any jaw and gnathostomata will have jaws, right? Yes? So these all things we discussed yesterday. Cephalochordata, from head to tail, it will have notochord all the time. Yes? Then vertebrata classification we had seen, right? That you have agnatha, which does not have jaws, and then gnathostomata, which have jaws, right? In agnatha, we have to learn only one class, and that is cyclostomata. In gnathostomata, they have jaws, right? And what do we learn under this? Param. Pisces, amphibians, reptiles, apes, and mammals, right? These we discuss. So now today we are going to discuss all of it. Yes? So these things also we had discussed, that our notochord transforms into vertebral or vertebral column. Vertebral column. We all had notochord when we were embryo. When we took birth, our notochord got transformed into vertebral column. Then we had learned key chambers of the heart, है ना? Param 2, 3, 3, 4, 4. These are the number of chambers present in the heart, right? We had learned this also. And after this, what we had learned? We have different types of appendages. Fish, they have fins, है ना? Bat, they have wings. Frog, they have limbs. And human also, they have also limbs, right? These were some species which we had seen. Now in today's class, we are going to learn about cyclostomata, agnatha. They don't have jaw, no jaw. क्या? They do not have jaw. उनके पास jaws नहीं होते हैं. तो हमने ये सब भी सीखा था कि वो एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ कुछ मछलियों में. उसके लिए उनके पास एक माउथ होगा जो सक कर सकता है. They have sucking and circular mouth. लेकिन जॉ नहीं होते हैं, राइट? उनके पास फिन्स तो होते हैं, लेकिन उनके बॉडी में स्केल्स नहीं होते. कल ऐसा मछली बनाया था मैंने, ऐसे 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 होता है ना स्केल, वो वाला स्केल इसमें नहीं पाया जाता है. ठीक है? ये हमेशा क्या होते हैं, जब पाए जाएंगे वो मराइन इन्वायरमेंट में, लेकिन जब इनको अपना एग ले करना होता है, स्पॉनिंग करना होता है, तो ये फ्रेश वाटर में जाते हैं. कुछ एग्जाम्पल सीखा था हमने. पेट्रोमाइजन, मिक्जीन. मिक्जीन को हैगफिश भी बोलते हैं और पेट्रोमाइजन को लैम्प्रे भी बोलते हैं, है ना? तो ऑल दीज वी हैड डिस्कस्ड. आज हम सीखने वाले हैं परम. परम, है ना? पहले पाइसेस सीखेंगे. जितने भी होंगे परम में, सबके पास क्या होगा? जॉ होगा. They all are going to have jaw. मतलब they are going to part of gnathostomata, है ना? सब किसके पार्ट है? gnathostomata के पार्ट है. अब एक एक करके पढ़ेंगे. पाइसेस. पाइसेस को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, याद है ना? कार्टिलेजिनस एंड बोनी. कार्टिलेजिनस को कॉन्ड्रिक्थिस बोलते हैं और बोनी को
ऑस्टिक्थिस भी बोलते हैं, राइट। कार्टिलेजिनस को कॉन्ड्रिक्थिस भी बोलते हैं। तो वी आर लर्निंग व्हाट, कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। ऑस्टिक्थिस को क्या है बोलते हो, ऑस्टिक्थिस को बोनी फिश भी बोलते हो, ऑस्टिक्थिस को बोनी फिश भी बोलते हो, राइट। कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कैरकैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, कैरकैरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, है ना। ऑस्टिक्थिस में क्या क्या डिफरेंट होता है, जो इसके गिल्स होते हैं ना, बोनी फिश के जो गिल्स होते हैं उसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, उनका गिल्स कवर्ड नहीं होता है, जो गिल स्लिट है उसके ऊपर कवरिंग नहीं है, उस कवरिंग को बोलते हैं ओपर्क्यूलम। सो बोनी फिश के पास गिल कवरिंग नहीं है, मतलब दे डोंट हैव ओपर्क्यूलम, मतलब क्या, दे डोंट हैव ओपर्क्यूलम, उनके पास ओपर्क्यूलम नहीं है। उनका जॉ बहुत ही मजबूत होगा, पावरफुल जॉ होंगे, ठीक है। उनकी बॉडी में स्केल्स पाए जाएंगे, कैसे, प्लेकॉइड। बोनी फिश के स्केल कैसे हैं, प्लेट के जैसा है, प्लेट के जैसा, तो बोलोगे इसको प्लेकॉइड स्केल है। कितने चैम्बर हार्ट में होंगे, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, 2 चैम्बर्ड हार्ट, ओके। अब देखो कॉन्ड्रिक्थिस का कुछ कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। देखो ये है आपका कार्टिलेजिनस फिश, एक ये फिश है, कौन सा फिश, कार्टिलेजिनस फिश। एग्जाम्पल है टॉर्पेडो, इसका नाम है टॉर्पेडो। इसको बोलते हैं कि ये शॉक देता है, इलेक्ट्रिक शॉक, क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, टॉर्पेडो इसका नाम है, और इसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है हमें, इलेक्ट्रिक शॉक। उसी तरह एक ये वाला कार्टिलेजिनस फिश है जो ट्राइगॉन है, ये पता है पॉइजन स्टिंग होता है इसके पास, ये पॉइजन को रिलीज कर सकता है, दे हैव पॉइजन स्टिंग। टॉर्पेडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, ठीक है। अब कार्टिलेजिनस फिश का जो मेल होता है ना, मेल फिश, उसके पेल्विक फिन में, पेल्विक का मतलब पीछे का, आगे में, जैसे ये फिश है तो एक आगे में फिन होगा, एक पीछे फिन्स होगा, जो पीछे होता है उसको बोलते हैं पेल्विक, है ना, पीछे वाला फिन। तो पेल्विक वाले फिन्स में इसके पास क्लैस्पर पाए जाते हैं, क्लैस्पर जो उनको हेल्प करता है चीजों को पकड़ने में, अच्छे से स्विम करने में, क्लैस्पर्स। पीछे वाले फिन में क्या प्रेजेंट होता है, क्लैस्पर, ओके। कुछ एग्जाम्पल और देख लो कॉन्ड्रिक्थिस का, स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस, कैरकैरोडॉन, ये तो पढ़ा अभी हमने, है ना। तो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस का मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि कॉन्ड्रिक्थिस इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होगा, कार्टिलेज से बना होगा, ठीक है। बोनी फिश उसका एंडोस्केलेटन बोनी होगा, कार्टिलेजिनस नहीं होगा, ठीक है। फिर बोनी फिश, क्या पढ़ा आपने बोनी फिश के बारे में, इसके गिल स्लिट में कवर नहीं होगा, कार्टिलेजिनस फिश उसके गिल स्लिट में ओपर्क्यूलम होगा, समझे, ये मेजर डिफरेंस है। कार्टिलेजिनस फिश के पेल्विक फिन में क्लैस्पर होगा मेल में, बट ऑस्टिक्थिस में नहीं होगा, ठीक है। डू दिस क्वेश्चन फास्ट। एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्ड्रिक्थिस,
जिसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है कौन है? टॉर्पेडो, ट्राइगॉन, स्कॉलियोडॉन, प्रिस्टिस। क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। व्हाट विल बी द आंसर? किसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन? यस, टॉर्पेडो, है ना। टॉर्पेडो के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। अभी तो पढ़ा हमने, देखो अभी देखा था हमने ये वाला, टॉर्पेडो विथ इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ट्राइगॉन के पास तो पॉइजन स्टिंग है ना, पॉइजन स्टिंग ट्राइगॉन के पास, राइट। तो ये आपके हो गया फिश। अभी देखो ऑस्ट्रिक्टिस में कुछ कुछ और डिफरेंसेस देखेंगे हम। ये हो गया आपका स्किन की कवरिंग। स्किन की कवरिंग कैसी होगी? तो अगर वो ऑस्ट्रिक्टिस है तो उनके बॉडी में या तो साइकिल के फॉर्म में स्केल्स होगा, उसको साइक्लोइड स्केल बोलोगे, या फिर कैसा होगा, ऐसे एक के ऊपर एक होगा। वो सर्कल नहीं बनाएगा पूरा पूरा, एक के ऊपर एक होगा, एंड दैट इज टीनोइड स्केल। ठीक है, तो आपको साइक्लोइड या टीनोइड स्केल्स मिल सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिक्टिस के पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, इसका मतलब वो स्विम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको हमेशा स्विम करना पड़ेगा पानी में। लेकिन कार्टिलेजिनस फिश के पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको बायोएंसी नहीं मिलती है। तो कार्टिलेजिनस फिश ना हमेशा उनको स्विम करना पड़ता है। अगर वो स्विम नहीं करेंगे ना तो पानी के नीचे चले जाएंगे। तो उनको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिश के पास एयर ब्लैडर नहीं है, जो कि बोनी फिश के पास है। तो बोनी फिश आराम से पानी में रह सकता है। ठीक है, फिर तो सेम ही चीज है, सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा मतलब अंडा देगा, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा मतलब कोई लार्वा वार्वा नहीं बनेगा। कुछ एग्जाम्पल ऑस्ट्रिक्टिस के हैं, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, ये सब ऑस्ट्रिक्टिस का एग्जाम्पल है। रोहू, कतला, ये सब तो खाते भी हम लोग। रोहू कतला तो खाते भी है ना, रोहू कतला, मांगुर, टेरोफाइलम जिसको एंजल फिश भी बोलते हैं, वो कितना सुंदर है, एंजल फिश, टेरोफाइलम। बेटा फाइटिंग फिश, इसको रिमेम्बर ऐसा वाला फिश को एक्वेरियम में रखते हैं। ये थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा है इमेज। रिमेम्बर ऑरेंज ऑरेंज कलर का एक फिश होता है एक्वेरियम में, वो फाइटिंग फिश है बेटा। एक्वेरियम में यूज करते हैं उसको हम। ठीक है, ऑलराइट, ये सब समरी है, आई विल शेयर इट। अब आ जाओ एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियंस आपका पाइसेस से डेवलप होगा, है ना, जैसे फ्रॉग वगैरह जो है। इसका नाम एम्फीबियन क्यों पड़ा? एम्फी का मतलब दो, दो जगह लाइफ को जी सकता है ये। कहाँ कहाँ? वाटर में एज वेल एज लैंड में। सो इट कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल। ओके, वाटर एंड लैंड, गॉट इट। तो इनके पास क्या क्या है? हेड है, ट्रंक है, एंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लिम्स? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ये सिर का पार्ट, बाकी जितना पार्ट होगा सबको ट्रंक बोलोगे। और कितने लिम्स होंगे इसके पास? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे। आंखों पे आईलिड होगी, जैसे हमारे आंखों पे आईलिड होता है ना, वैसे इनके पास आईलिड होगी। ओके, ऑलराइट। कुछ लोगों में क्या टेल भी पाया जाएगा। ऑलराइट, अब एम्फीबियंस बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, तो क्या उनके पास एलिमेंट्री कैनाल है? ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स है। ये ओपन होता है कॉमन चैम्बर में, क्लोएका में। मतलब जो कचरा खाना का है ना,
अनडाइजेस्टेड फूड वो भी क्लोएका में ओपन होगा, जो यूरिन है वो भी क्लोएका में ओपन होगा, और जो गैमेट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, वो भी कहाँ ओपन होगा? क्लोएका में। तो देखो सब कुछ एक जैसा होता है एम्फीबियंस में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये आपका हो गया क्लोएका, ये जो है क्लोएका है ना। इसी क्लोएका में सब कुछ ओपन होगा। यूरिनरी ब्लैडर आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे, किडनी, तो यूरिन आ गया क्लोएका में। फिर क्या, उसके बाद इसमें गैमेट्स बनेंगे, ये आपका गैमेट वाला है, तो गैमेट भी ओपन हो जाएगा क्लोएका में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिर एलिमेंट्री कैनाल होगा एक, वो एलिमेंट्री कैनाल भी कहाँ ओपन होगा? अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ आएगा? क्लोएका। तो क्लोएका इज द कॉमन चैम्बर इन एम्फीबियन, जिसमें सब कुछ उसी में मिक्स होता है, गैमेट भी इसी में आते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इसी पे ओपन होता है। यूरिनरी, ये जो यूरेटर है ना, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, ये भी क्लोएका में ओपन होता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है एलिमेंट्री कैनाल, वो भी क्लोएका में ओपन होता है। एंड फाइनली क्लोएका से वो बाहर निकल जाएगा। क्लोएका में एक एपर्चर होगा, क्लोएकल एपर्चर, और उस क्लोएकल एपर्चर से बाहर आ जाएगा। इसमें ऐसे एनस नहीं होता, समझे? क्लोएका होता है, क्लोएका से ही वो चीजों को बाहर रिलीज करेगा, समझे? अब देखो एम्फीबियन रिस्पिरेशन कैसे करेगा। एक तो वो लैंड में रह सकता है, एक तो वो पानी में रह सकता है ना, समझे? ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा, है कि नहीं? ऑक्सीजन को लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, समझे? तो एम्फीबियन दो तरह से रिस्पिरेशन करता है, एक तो स्किन से, और दूसरा क्या? दूसरा लंग्स से। जो स्किन से करेगा ना, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ स्किन, क्यूटेनियस। सिर्फ एम्फीबियन ही नहीं, जो भी ऑर्गेनिज्म स्किन से रिस्पिरेशन करता है उसको क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं। अब जब वो लंग्स से रिस्पिरेशन करेगा तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी रिस्पिरेशन, पल्मोनरी रिस्पिरेशन, ठीक है? पल्मोनरी रिस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू हुआ तो पल्मोनरी रिस्पिरेशन, स्किन के थ्रू हुआ तो क्यूटेनियस, ठीक है? स्किन के थ्रू हुआ तो क्यूटेनियस, और लंग्स के थ्रू हुआ तो पल्मोनरी, है कि नहीं? अब देखो यहाँ से कितने हार्ट होते हैं? 2 3 3 4 4, परम, याद है ना? तो एम्फीबियन के पास कितने चैम्बर होंगे? 3 चैम्बर होंगे, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। 2 एट्रियम और कितने वेंट्रिकल? 1 वेंट्रिकल, ठीक है? ये भी अंडा देंगे, ये भी ओविपैरस है, ओके? इसका अगर लाइफ साइकिल देखोगे, मान लो फ्रॉग है, ओविपैरस है ना, तो एग रिलीज किया। अब ये वाला जो एग है वो एम्ब्रियो में बाहर डेवलप हुआ पानी में, वो एम्ब्रियो पहले क्या बनेगा? टैडपोल लार्वा, है ना, टैडपोल। उस टैडपोल में पहले 2 टांगे डेवलप होगी, 2 लेग, फिर उस टैडपोल में 4 लेग डेवलप होगा, और फाइनली वो टैडपोल फ्रॉग बन जाएगा, एडल्ट। इस तरह से फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है ना? उसका लार्वा स्टेज क्या होता है? टैडपोल। एडल्ट होता है फ्रॉग, और फ्रॉग का जो लार्वा स्टेज होता है उसको क्या बोलते हो? टैडपोल। पहले उसकी 2 टांगे डेवलप होंगी, एंड आफ्टर दैट उसके चारों टांगे डेवलप हो जाएंगी, ऑल 4 लिम्स विल डेवलप, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल देख लो, ये सब एग्जाम्पल है सारे एम्फीबियंस के। बूफो, टोड, हाइला। ट्री फ्रॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेड़ों पे रहता है। सैलेमेंड्रा, इक्थियोफिस। इक्थियोफिस एक ऐसा एम्फीबिया है जिसमें लिम्ब नहीं पाया जाता है,
जनरली एम्फीबियंस में 4 लिम्ब होते हैं ना, बट इक्तियोफिस में एक भी लिम्ब नहीं होता है, एक भी लिम्ब नहीं होता है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? वैष्णवी इज आस्किंग कि पोइकिलोथर्मिक का मतलब क्या है? पोइकिलोथर्मिक का मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो बाहर का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री हो जाए तो उसका टेम्परेचर भी 40 हो जाए, अगर बाहर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसके बॉडी का टेम्परेचर भी 0 हो जाए, मतलब वो अपना खुद का कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म हु आर नॉट एबल टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, उसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक एनिमल या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, समझे? या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका एम्फीबियंस। अब आते हैं रेप्टाइल्स में। तो रेप्टाइल्स में सबको पता ही होगा, रेप्टाइल्स क्रॉल करते हैं ना, देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत रेप्टाइल है, स्नेक है, क्रोकोडाइल है ना? तो इसका नाम रेप्टाइल क्यों पड़ा? एक लैटिन टर्म होता है रेपेर और रेप्टम, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, है ना? तो वो लोकोमोशन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे लोकोमोशन? क्रॉल करके। कहाँ पाए जाएंगे? मोस्टली लैंड पे पाए जाएंगे। उनका स्किन कैसा होगा? ड्राई होगा और खुरदरा हो सकता है। क्रोकोडाइल का देखना कभी टच करके कितना खुरदरा होगा, है ना? फिर कितने पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं? छिपकली देखी है ना, छिपकली से रिलेट कर लो। कितने पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं? 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं। यहां से टिम्पैनम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। टिम्पैनम एक्सटर्नल ईयर है, हमारे बॉडी में भी है। हमारे बॉडी में टिम्पैनम एक ऐसा पार्ट है जो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करता है, बट इन लोगों में टिम्पैनम ही एक्सटर्नल ईयर का काम करता है। इन लोगों में पिन्ना का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमारी बॉडी में पिन्ना है, जो टीचर्स आपके कान को पकड़ के यूज करते हैं ना पनिशमेंट देने के लिए, वो पिन्ना है। हम में है, उनमें नहीं है, उनमें टिम्पैनम है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। सांप है, देयर इज अ स्नेक। वो क्या कर रहा है? स्नेक अपने स्किन को बाहर निकाल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्किन कास्टिंग या स्किन शेडिंग। क्या बोलते हो? स्किन कास्टिंग। देखा होगा कभी कभी सांप अपने स्किन को चेंज करते हैं, है ना? उस प्रोसेस को बोलते हैं कास्टिंग, स्किन कास्टिंग। अब बताओ रेप्टाइल में कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होंगे? 2 3 3 4 4। रेप्टाइल में भी 3 होगा, है ना? 3 होगा, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल, दिस इज द एक्सेप्शन। इसके बाद कितना होगा? 4 चैम्बर का हार्ट होगा। रेप्टाइल भी पोइकिलोथर्म्स है, मतलब कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है। ये भी अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा वैसा ही अंदर का टेम्परेचर होगा। अलग अलग होते हैं सेक्स इसमें भी, है ना? मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन अंडे को रिलीज करेंगे, सांप का अंडा, है ना? छिपकली, लिजर्ड वगैरह देखे होगे, अंडा रिलीज करती है। कुछ कुछ एग्जाम्पल है, ये सब बहुत इजी है ना? टर्टल, टॉर्टोइज। टर्टल को पूरे टाइम में पानी रखना पड़ता है, यू नीड टू कीप वाटर ना, टू कीप द टर्टल ऑलवेज। लेकिन टॉर्टोइज को जरूरत नहीं है, कभी बस थोड़ी देर के लिए वाटर दे दो, बाकी टॉर्टोइज जिंदा रह सकता है पानी के बिना, है ना?
अब है आपका एप्स। अब एप्स में हमने क्या सीखा था? 2 3 3 4 4 PARA, ये वाला एप्स है ना, मतलब इसका कितने चैम्बर होंगे हार्ट में? 4 चैम्बर होंगे हार्ट में, है ना। तो एप्स में आपको फेदर्स मिलेंगे, बीक मिलेंगे। भाई एक इमेजिन कर लो, एक खूबसूरत सा बर्ड, जो भी बर्ड में मिलेगा वही आपका एप्स है। इसमें लिम्ब जो आपका है वो विंग्स बन जाता है, समझे। इसके पास 2 टांगे होंगी और जो 2 टांगे होनी चाहिए थी वो विंग्स बन गया है, समझे। आगे का जो विंग होता है उसको 4 लिम्ब बोलते हैं, तो इसमें 4 लिम्ब नहीं होता है, वो विंग्स बन जाता है। जो पीछे का लेग है वही उनको वॉकिंग, स्विमिंग, ब्रांचेस को पकड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, बर्ड्स है ना, बर्ड्स को फ्लाई करना है, बर्ड्स को फ्लाई करना है। अगर उसको फ्लाई करना है तो उसका बॉडी हल्का होना चाहिए ना। तो सिंस उसके बॉडी को हल्का होना चाहिए, उसके बोन्स क्या होते हैं? हॉलो। उसके बोन्स क्या होते हैं? हॉलो, एयर कैविटी प्रेजेंट होंगे। तो जब वो हल्का होगा तो वो इजीली फ्लाई कर सकता है ना। फिर उसका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, माउथ होगा, ईसोफेगस होगा, खाना को स्टोर करेगा, क्रॉप होगा, स्टमक होगा, गिजर्ड होगा। एकदम अच्छा जैसे हमारा सिस्टम है ना वैसे ही है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इनका सिंपल होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनके टेल के पास ना एक ऑयल ग्लैंड होता है, टेल के पास एक ऑयल ग्लैंड होता है। अभी अभी मैंने बताया हार्ट कितने चैम्बर के होंगे? 4 चैम्बर के होंगे। हाउ मेनी चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स, ठीक है। अब देखो ये कैसे है, ये वार्म ब्लडेड है। कैसे है? वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मल। उसको बोले थे पोइकिलोथर्मल, इसको क्या बोलोगे? होम्योथर्मल। क्या बोलोगे? होम्योथर्मल, राइट। एक बार इस इमेज को ध्यान से देखो। सो एनीवन हैज एनी डाउट अप टू हियर यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बहुत इजी है, जो भी डिफिकल्ट था वो नॉन कोऑर्डिनेट था। कोऑर्डिनेटा में सब इंफॉर्मेशन है, ओनली इंफॉर्मेशन इज देयर। जितनी जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे, है ना। कुछ कुछ आपका देखो एग्जाम्पल है। अब तो बहुत कम दिखता है क्रो, है ना। पैरट है, ऑस्ट्रिच है, नेफ्रॉन है, वल्चर, पिजन, कोलंबा, ठीक है। ये आपके बर्ड्स हो गए। अब जो फाइनल वाला स्ट्रक्चर है वो है मैमेलिया। अलग अलग हैबिटेट में पाए जा सकते हैं, गर्मी में पाए जा सकते हैं, आइस में पाए जा सकते हैं, माउंटेन में पाए जा सकते हैं, गुफा में पाए जा सकते हैं, फॉरेस्ट में पाए जा सकते हैं, ग्रासलैंड, मतलब मैमल्स हर जगह पाए जा सकते हैं। तो उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं देख रहे हो? अभी मैंने बोला था हमारी बॉडी में पिन्ना होता है, हम मैमल्स हैं। हमारी बॉडी में एक्सटर्नल ईयर का डेवलपमेंट हो गया, पिन्ना। मेमोरी ग्लैंड, अगर कोई फीमेल बॉडी है, मेल है सब में मेमोरी ग्लैंड है, लेकिन फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन होगा, तो मेमोरी ग्लैंड होते हैं मैमल्स में। कितने पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं? 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। अलग अलग तरह के टीथ होते हैं मैमल में। बॉडी में हेयर पाए जाते हैं, हेयर ऑन देयर बॉडी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैमल्स के। हार्ट कितने चैम्बर के होते हैं? 4 चैम्बर के। ऑब्वियसली हम मैमल है तो हम अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करते हैं, है ना। होम्योथर्मल है, वार्म ब्लडेड। रिस्पिरेशन कैसे करते हो? लंग्स से करते हो, पल्मोनरी रिस्पिरेशन, है ना। कोई और किसी और से करता है क्या? नहीं ना।
ऑब्वियसली मेल फीमेल अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, और सभी क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, मतलब वो दे गिव बर्थ टू बेबी, यंग वंस, वो अंडा नहीं दे सकते। ठीक है, ओके। कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पे एक्सेप्शन दिख रहा है आपको, ये एक्सेप्शन है, ये एग लेइंग मैमल है, एग लेइंग मैमल, मैमल हमेशा गिव बर्थ टू बेबी, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे प्लैटिपस एंड एकिडना, प्लैटिपस एंड एकिडना। और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स है आपके, कंगारू, कैमल, फ्लाइंग फॉक्स, चूहा, डॉग, एलिफेंट, ये सब मैमल है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? एनीवन हैज एनी डाउट? दैट इज योर एनिमल किंगडम। किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट, यू कैन आस्क। किसी को कोई डाउट है? जो मैं पढ़ाई हूं, once you revise it properly, ठीक है, I will be uploading it, revise it properly। कल का क्लास एक डाउट क्लास है, tomorrow's class is a doubt class। आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो, अपने करियर से रिलेटेड, अपने एकेडमिक से रिलेटेड, आपको क्या करना है नहीं करना है, यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट टुमारो। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव नाउ। ओके, कल मिलेंगे हम।